السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہم خیریت سے ہیں۔ اور اس وقت میں اپنے خالہ کے گھر کے باہر کھڑی ہوں۔ یہ دیکھیے، پہلے تو سلور لائننگ کے نام سے ان کی بیٹی ہے جو یہ بناتی ہے بیڈ شیٹس، بیڈ کورز، کشنز، بڑا کچھ بناتی ہے۔ تو یہ بڑی سویٹ ہے۔ یہ میں جب بھی جاتی ہوں کہیں، کوئی میرا بچہ آتا ہے تو یہ اس کی چیزیں مجھے گفٹ کر دیتی ہیں۔ میں نے آج تک خود تو خریدا کبھی نہیں، یہ مجھے گفٹ کر دیتی ہے اور میں لے جاتی ہوں، جس کو بھی دینا ہو دے دیتی ہوں، مجھے دے دیتی ہیں، میں آگے بچوں کو دے دیتی ہوں، جب بھی یہ دیتی ہیں تو میں بچوں کو دے دیتی ہوں۔ تو جناب اب انہوں نے مجھے کہا کہ تم جا رہی ہو، میں کل جا رہی ہوں، UK جا رہی ہوں انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ آ جاؤ، تمہارے لیے ایک بیڈ شیٹ رکھی ہے، خدا کو دے آنا۔ تو میں نے اب ان سے لے لی ہے اور اب میں جا رہی ہوں آگے۔ مزے کی بات بتاؤں کہ جب انہوں نے دی نا، میری بہن جا رہی تھی، وہ بھی امریکہ گئی ہوئی ہے، تو اس کو بھی دی نا گفٹ دیے کہ اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو دے آنا۔ تو میں نے کہا خالہ مجھے نہیں دینا، میں بھی جا رہی ہوں۔ کہتی جب تمہاری باری آئے گی تو میں بھی دوں گی۔ تو کل میں ان سے ملنے گئی تو اللہ حافظ کہہ کے میں آ رہی تھی، تو میرے ذہن میں آیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو گفٹ دوں گی، تو میں نے سوچا کہ میں انہیں کہوں کہ خالہ کدھر ہے پھر خدا کے لیے گفٹ، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے کہا ایسی ہی ہے تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ تو پھر ان کا فون آیا، او ہو سیمی، میں نے تمہیں خدا کے لیے گفٹ دینا تھا، تو اب تم کیسے آ سکتی ہو، یا میں کسی کو بھیج دوں؟ تو میں نے کہا کہ خالہ میں نے کل جانا ہے، خدا کی جو کزن ہے میری بہن کی بیٹی، وہ آئی ہوئی امریکہ سے نا، تو اس کے پاسپورٹ لینے جانا ہے، کوئی ویزا شیزا لگوایا، کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ تو اس کا میاں تو نہیں ہے، وہ چلا گیا ہوا ہے فیصل آباد، اس کی امی بیمار ہیں تو وہ ادھر چلا گیا ہوا ہے۔ بس یہ زندگی ہے، زندگی میں بڑے نشیب و فراز آتے ہیں، بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، بڑا کچھ چل رہا ہے ان کی زندگی میں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے۔ تو پھر اس نے کہا کہ رمشا تم جا کے لے لینا۔ تو پھر اس کا مجھے کل آیا میسیج کہ کل ملنا ہے پاسپورٹ، تو آپ مجھے لے جائیں گی؟ میں نے کہا میں لے جاؤں گی، کیوں نہیں لے جاؤں گی۔ تو اب میں جا رہی ہوں اپنی بہن کی طرف، اور وہاں جا کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پک کروں گی with 2 بچاز اور پھر میں نے جانا ہے پاسپورٹ لینے۔ اب کہاں سے ملتا ہے؟ میں گئی بھی تو ہوں لیکن بھول جاتا ہے ہم لوگوں کو، ہے نا، کہاں یاد رہتی ہیں چیزیں۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ مجھے کتنا کوئی یاد ہے اور کتنا نہیں یاد ہے۔ مل ہی جائے گا اندازہ ہے کہ کہاں پر ہے وہ، شملہ پہاڑی کے پاس، اور ڈھونڈ لیں گے۔ سو دس از لائف میں کیا کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے انسان کے، ہے نا، بہن بھائی کے بچے، یہ سارے ہمارے رشتے ہیں، اور ان رشتوں کو نبھانا بڑا ضروری ہے۔ اور بہن نہیں ہے تو پھر تو بہن کے رشتوں کو زیادہ ہی نبھانا ضروری ہے نا۔ تو بس اب میں جا رہی ہوں، اور یہ جو راستہ ہے نا، یہ راستہ میرے لیے پتہ نہیں ہمیشہ سے اپنا کٹھن ہو گیا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں پر میں جاتی ہوتی تھی اپنے ابو سے ملنے۔ ابو تھے بہن کی طرف، آپ لوگوں کو پتہ ہے، آخری دن میں، اور آخری دنوں میں میں ادھر جاتی تھی، ادھر رہی بھی، آپ کو ویڈیوز بھی دکھاتی رہی۔ اس سڑک پہ، اس روٹ پہ بڑے مشکل ٹائم پہ میں گزری ہوں، بہت مشکل ٹائم پہ، بس وہ میں ہی جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ لے آئی پھر کہاں پہ قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ میں جب آتی ہوں مجھے یہی خیال آتا ہے کہ یہ وہی روٹ ہے، یہ وہی سڑک ہے۔ تو کتنے عرصے تک تو میں بہن کے گھر نہیں گئی، وہاں جانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ وہاں کے جو آخری لمحات ہیں ابو کے، اور ہم سب ساتھ تھے، بھولتے نہیں ہیں۔ I cannot forget it for the whole life۔ آخری عمر کے حصے میں آ گئی ہوں، لیکن ماں باپ اتنے پیارے ہوتے ہیں، نہ وہ بھولتے ہیں، نہ ان کا خیال دل سے جاتا ہے، نہ ان کی تکلیف بھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی ماں باپ کو تکلیف نہ دے، اللہ تعالیٰ بس سکون سے ہی لے جائے اس دنیا سے، تو کیا بات ہے۔ یہ بیماریاں، یہ سانس کا نہ آنا اس زندگی میں، ایسے ٹائم گزارنا، کیسی فیلنگ ہوتی ہوگی؟ مجھے تو ابھی سے ہی بڑی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے دینا۔ اللہ تعالیٰ، جانا تو ہے ہم نے اس دنیا سے،
लेकिन अल्लाह ताला आसानी दे देना। अभी जहाँ से मैं गुज़र रही हूँ ना, ये है कैवलरी ग्राउंड कहलाता है। ये मेरे राइट साइड पे CSD आ गई है, और आगे जाए तो नीचे से अंडरग्राउंड, और फिर ऊपर जाके फिर वहाँ का पुल आना है लेफ़्ट साइड पे, फिरदौस मार्केट। ये मेरा रूट है। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखें तो आपको पता चल जाएगा कि सीमी इन्हीं रूट्स पे सफ़र करती रही है उन दिनों में, और कितने कितने मुश्किल टाइम में जब मैं कहती थी दुआ करो, दुआ करें अब्बू के लिए, बस भाई को भी बुला लिया है, बस दुआ करें। बहुत बहुत मुश्किल टाइम गुजारा। तो बस ये रास्ते और ये वाक़यात तो फिर नहीं भूलते ना। और फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ से राइट को टर्न करें तो कब्रिस्तान है, जहाँ पर पहले अम्मी थी 5 साल पहले, और अब्बू यहाँ से रोज़ जब हम गुज़रते थे उधर जाना होता था, कहते थे मुझे लेके जाओ कब्रिस्तान, लेके जाओ, मैंने अम्मी के पास जाना है। और फिर कहते रहे कि मुझे ले जाओ। आखिरी 2 महीने यहाँ पर सड़क बनती रही तो हम उनको नहीं ले जा सके, रास्ता बंद था, क्योंकि अब्बू ने व्हील चेयर पर जाना होता था, वहाँ तक पहुँचते थे। फिर कहते थे कि इसके सामने से मोतिया लगा हुआ था तो कि ये हटाओ, मुझे इसका नाम पढ़ना है। अम्मी का नाम पढ़ के दुआ करके तो फिर आते थे। तो कल भाई आया बड़े अरसे बाद, तो कहता है मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा मैंने जाना है वहाँ, तो मैं गई। अम्मी अबू साथ साथ हैं। कहते थे यहाँ की जगह रोक लो, हाँ यहाँ पर मैं साथ ही जाऊँगा, और वही हुआ। साथ ही हैं दोनों। जा नहीं सके, कहते थे मैं नहीं जा सका, लेकिन अब साथ हमेशा का हो गया। अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करे, हमें माफ़ करे, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। बड़े प्यारे माँ बाप थे। माँ बाप सबके ही प्यारे होते हैं। आप लोगों को उदास कर देती हूँ कभी कभी, क्योंकि ये बातें ज़िंदगी की बातें हैं। बहुत से लोग मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं ना। तो ये ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। कभी हंसना कभी रोना, ये तो ज़िंदगी में है। रोते हुए लोगों के साथ लोग रोते नहीं हैं, हंसते वालों के साथ हंस लेते हैं। इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ मैं हंसूँ, मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ मोटिवेट करूँ, कोई अच्छी बात बताऊँ, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद यही होना चाहिए कि कोई अच्छी बात किसी को बता दी जाए, कोई रिलेटेबल बात बता दी जाए, है ना। बातें तो बहुत सी हो सकती हैं, उल्टी पुल्टी बातें भी दुनिया में लोग कर रहे हैं, अजीब अजीब सी हरकतें भी कर रहे हैं, पर इन अजीब हरकतों का क्या होना है आखिर। कल मैं गई वहाँ पर, पहले मैंने सोचा मैं वीडियो बना लूँ, बहुत ख्यालात आ रहे थे, और बहुत अच्छी एक वीडियो बन सकती थी वहाँ सबको देख के, वहाँ के सब मकीनों को देख के। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, बस दिल बड़ा ही उदास था दोनों को साथ देख के। और 22 फरवरी लिखा हुआ था, एकदम मुझे क्लिक किया कि ये बड़ी जानी जानी सी कोई हिंसा है। और 22 फरवरी मेरी पैदाइश है, जिस दिन मेरी बर्थडे थी उसी दिन अब्बू फौत हुए। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, वो सुबह मैं कभी नहीं भूल सकती। ये लेफ़्ट साइड पे भी कब्रिस्तान आ गया है। ये यहाँ पर बड़े बड़े नामवर लोग हैं, बड़े बड़े हीरोज़, और बड़े बड़े फिरदौस मार्केट के पास का कब्रिस्तान है। अली ज़ेब यहाँ पर, वहीद मुराद, इधर ही सारे रहते थे। यहाँ पर अली ज़ेब रहते थे, मशहूर फिल्म स्टार जोड़ा। तो सारे जोड़े टूट जाते हैं, और टूटने के बाद बिखर जाते हैं, फैमिलीज़ भी बिखर जाती हैं। तो जो बच जाते हैं बस उनके साथ प्यार मोहब्बत से रह लें, प्यार मोहब्बत से गुजार लें ज़िंदगी। ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है, किसी वक्त भी कोई पता नहीं है। कभी आगे किसी गाड़ी से, कभी किसी गाड़ी के पीछे, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। तो जो अपने हैं ना, उनके काम ज़रूर करें, उनका साथ ज़रूर दें, उनका दिल ना तोड़ें, कभी भी दिल ना तोड़ें। इस दिल में खुदा रहता है, अल्लाह ताला रहते हैं, तो दिल किसी का ना दुखाएं। बस एक ये जो बहुत ज़रूरी बात है ना कि हम दूसरों का दिल दुखाते हैं। और कल मैं यही सोच रही थी, वहाँ बैठ के मैं बेंच पे बैठ गई, वहाँ पर एक फिर बहन ने बेंच रख दिया है बड़ा अच्छा सा, क्योंकि कहती थी कि कब्र पे नहीं बैठना चाहिए। तो कभी थक जाता है इंसान, बैठने को दिल करता है। तो बैठ के मैं सोच रही थी, भाई ने आके मुझे हक किया, तो बस उदासी हो गई। उदासी तो है, तो सबने चले जाना है। तो हम लोग
क्या दूसरों का दिल दुखाते हैं, हम क्या दूसरों को तंग करते हैं, हम क्या दूसरों को परेशानियां देते हैं, है ना। उनके पैसे हथियाते हैं, उनके मकान हथियाते हैं, पैसों पे लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, आसाइशों पे, मराहत पे, कौन कितना बड़ा है, कौन वजीर आज़म, कौन गवर्नर। तो बड़े बड़े जर्नैल्स वहाँ दफन हैं, जर्नैल और पता नहीं कितने सारे इस तरह बड़े बड़ों के नाम तो मैं नहीं ले सकती, पर बहुत सारे वहाँ दफन हैं। वो आर्मी का कब्रिस्तान है। और सब चले गए इस दुनिया से। बड़े बड़े शेर भी लिखे हुए हैं और बड़ा बड़ा कुछ प्यार मोहब्बत में अपने माँ बाप के लिए अल्फाज भी लिखे हुए थे वहाँ। माँ बाप होते हैं तो पता नहीं उनकी इज्जत नहीं की जाती, उनको प्यार नहीं दिया जाता। जाके उनकी कब्र के ऊपर लगा दो, शेर लगा दो, जो मर्जी प्यार मोहब्बत के नाम लिख दो, लगा दो, आपका फलाना बेटा तो आपका फलाना बेटा। ठीक है, अगर आपने ख्याल किया बेटे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में तंग किया है और बाद में आपको अपनी बीवी भी याद आ रही है या मियाँ याद आ रहा है या फिर जो भी था चला गया, तो क्या फ़ायदा है। बाद में कहते रहो हुन की कर साते हुन की हो सी तो साड़ा की बनसी। मुश्किल तो पड़ती है ना ज़िंदगी में, हम लोग फिर सोचते हैं। तो जब तक कोई ज़िंदा है बस उसका जो है ना दुख दर्द बांट लें, ये बड़ा ज़रूरी है। ये मैं जा रही हूँ, अभी फिर आ गया है अशफाक अहमद अंडरपास है ये, जब हम मॉडल टाउन जाते हैं ना तो ये आता है। और अशफाक अहमद कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे और कितने ज़िंदगी के तजुर्बात बताते थे। तो मेरे भी ये ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, कभी धूप और कभी छाँव। धूप छाँव का खेल है ये, धूप छाँव का खेल है। पकड़ लें, समेट लें जो भी मिलता है। ज़रूरत पड़े तो हॉर्न बजा दें, कभी कभी हॉर्न बजाना बड़ा ज़रूरी होता है, अगले को नहीं पता होता। हाँ जी हाँ, अगली गाड़ी को हॉर्न दें, पास कर जाएं, ज़रूरत हो तो रुक जाएं, स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे और रेड लाइट भी आ जाएगी कभी कभी, है ना। सो दिस इज़ लाइफ एंड द लाइफ गोज़ ऑन। तो बस अब मेरा घर करीब आ गया है, मेरी बहन का घर। अब मैं उनसे मिलूँगी, उनके काम करूँगी, जाऊँगी। अब इस उम्र में यही काम करने हैं, अब यही काम कर रहे हैं, दूसरे के काम आ जाएं तो बड़ी बात है ना। अपने लिए तो जीते हैं सभी जहां में है, ज़िंदगी का मकसद दूसरों के काम आना। जो भी है, मेरे शेर उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, अब कोई थोड़ी उम्र का भी तकाजा है, कोई यादाश्त का भी तकाजा है। तो चलिए जी, अब हम मुड़ने लगे हैं और इंडिकेटर देना बहुत ज़रूरी है। जब आप ज़िंदगी में कभी मुड़ने लगें किसी सफ़र से तंग आ जाएं तो हॉर्न दें हैं और उसके बाद मुड़ जाएं और बस फिर अपनी ज़िंदगी को जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ पहुँचा दें। पहुँचाना तो अल्लाह ने, मंसूबे अल्लाह के, करना अल्लाह ने, तो परेशान किसी चीज़ में नहीं होना। दिस इज़ लाइफ एंड द लाइफ गोज़ ऑन। परेशानी करनी नहीं, परेशानी अल्लाह ताला आज़माने के लिए देता है, तो इम्तिहान है, बस ठीक है ना। चले मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। आपके लिए बहुत बहुत सारी दुआएं। कभी कभी मैं सेंटिमेंटल हो जाती हूँ, बट दिस इज़ लाइफ ना, दिस इज़ रियल लाइफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।